اور اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا چلے یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے ولی عبادتیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں۔ آخر نظام الدین اولیاء سے محبوب الہی بننے تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی معین الدین اجمیری غریب نواز کیسے بن جاتا ہے، ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی بابا فرید زہد الانبیاء کیسے بن جاتا ہے۔ تو اگر جب ہم یہ غور و فکر کریں گے کہ کوئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیسے بن جاتے ہیں اور کیسے وہ سلطان المشائخ کہلاتے ہیں، کیسے وہ سلطان جی کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، تو جب ہم ان تمام پروسیجر پر غور کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ محبوب الہی بننے تک کا جو سفر ہے نظام الدین اولیاء سے، وہ انہی جگہوں پر طے کیا جاتا ہے، انہی مقامات پر عبادتیں کر کے، انہی مقامات پر ریاضتیں کر کے، انہی مقامات پر لمبے زمانے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کر کے، اللہ کا ذکر و اذکار کر کے، دھیان لگا کر کے انہی مقامات پر وہ تمام راستے طے کیے جاتے ہیں جو اللہ کی قرب کے، اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی صوفی کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہر صوفی نے کسی نہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب عبادتوں کے لیے کیا، ریاضتوں کے لیے کیا کہ جہاں پر اس کا تعلق جو ہے وہ مخلوق خدا سے بالکل الگ ہو جائے، وہ ہو اور اس کا رب ہو، اور پھر رب اور بندے کی باتیں ہوں، عبادتیں ہوں۔ ہم جب انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو چاہے حضرت موسیٰ کی تاریخ پڑھیں یا حضرت عیسیٰ کی تاریخ پڑھیں یا حضرت نوح کی یا حضرت داؤد یا حضرت ابراہیم کی تاریخ پڑھیں، تو ہر صوفی کی تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر بزرگ نے، ہر اللہ کے ولی نے کسی نہ کسی ایک مقام کا، ہر اللہ کے نبی نے کسی نہ کسی ایک جگہ کا ایسا انتخاب کیا کہ جہاں پر جا کر کے وہ عبادتیں کر سکیں، ریاضتیں کر سکیں، تنہائی میں اپنے رب سے ہم کلام ہو سکیں۔ اور اسی وجہ سے اولیاء اللہ کے اندر بھی وہ تمام معاملات جو ہیں وہ منتقل ہوئے، جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں غار حرا کا ایک تصور ملتا ہے۔ لمبے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نمازوں کا حکم آنے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں کیا کرتے تھے، وہاں دھیان لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چلہ ہو، یا حضرت بابا فرید کا چلہ ہو، یا پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہو، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اس مقام پہ آ کر کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اس جگہ پر آ کر کے وظائف پڑھا کرتے تھے، اس جگہ پر آ کر کے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرتے تھے، اور انفرادی جو عبادتیں تھیں وہ یہاں پر آ کر کے محبوب الہی کیا کرتے تھے، اور لمبے زمانے تک حضرت محبوب الہی نے اس جگہ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اس جگہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ صوفی اگر کسی ایک جگہ پر اپنا قدم رکھتا ہے تو اس قدم کے نشان بھی باقی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے لمبے زمانے تک یہاں عبادت کی ہے، لمبے زمانے تک یہاں وظائف پڑھے ہیں، تو حضرت محبوب الہی کے چلے کا نشان یہاں پر باقی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم سجدے کرتے ہیں تو ہماری تقدیر نہیں بدلتی، لیکن نظام الدین اولیاء سجدہ کر دیں تو زمین کی تقدیر بدل کے رکھ دیں۔ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جب زمینوں پر سجدے کرتے ہیں تو زمینوں کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے یہاں عبادتوں کا تصور نہیں ہے، نمازوں کا تصور نہیں ہے، صوفیہ کے یہاں رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا تصور نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا جو تصور صوفیہ کے یہاں ہے وہ دنیا کی کسی اور جماعت میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ یہ سکھاتے ہیں کہ مولا علی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اے مولا، اپنے مولا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں تو تو مجھے جنت نہ عطا فرمانا، اور اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں تو تو مجھے جہنم میں ڈال دے۔ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو صوفیہ چونکہ مولا علی کے مسلک پر ہوتے ہیں، اس لیے صوفیہ یہی سکھاتے ہیں کہ تم جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرو، جنت کے خالق کی رضا کے لیے عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرو، سجدہ اس لیے کرو کہ وہ رب ہمارا عبادتوں کے لائق ہے۔ اور وہ صوفیہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا بندے کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت محبوب الہی ہوں یا حضرت خواجہ غریب نواز ہوں یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، مخدوم سمنا وحد الدین طارق السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، یہ وہ اولیاء ہیں، یہ وہ صوفیاء ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے بندوں کو عبادتیں کرنے کا وہ تصور دیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ نماز منزلیں نہیں ہیں، نماز منزل پہ پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر نمازیں جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بناتی، ایک مثالی شوہر نہیں بناتی، ایک اچھا بیٹا نہیں بناتی، ایک وفادار اور ایماندار تاجر نہیں بناتی، اور ایک اچھا انسان نہیں بناتی، تو آپ اپنی نمازوں کو ری چیک کریں۔
नमाजें तो मंजिल पे पहुंचाने का जरिया है, यानी नमाजें बुराइयों से रोकती हैं, फहाशी से रोकती हैं, मुनकरात से रोकती हैं, नमाजें हर तरह की गलतियों से रोकती हैं। तो सूफिया हमारी नमाजों को प्यूरिफाई करते हैं। सूफिया ये सिखाते हैं कि इबादतों में लज्जतें कैसे हासिल करनी है। सूफिया ये सिखाते हैं कि खुशू और खुशू कैसे हासिल करना है। उलमा की बारगाह में नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात पर तवज्जो दी जाती है। उलमा के यहाँ नमाज के फ़राइज़ की तादाद और नमाज के वाजिबात की तादाद बताई जाती है, लेकिन हमारे जो सूफिया होते हैं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये नमाज में दिल की कैफियत कैसे होनी चाहिए और बंदे की नमाज में हुजूरी कैसी होनी चाहिए, इबादतों में ज़िक्र व अस्कार में खुलूस कैसा होना चाहिए, यही हमारे सूफिया सिखाते हैं। इसीलिए इनकी बारगाहों में और इनकी रहनुमाई में सजदे करने वालों के निशानात ज़मीन पर बाकी होते हैं। और इसी वजह से आपको इस मुल्क में भी हर जगह कहीं गरीब नवाज का चिल्ला है, कहीं बाबा फरीद का चिल्ला है, कहीं हज़रत ख्वाजा कुतुब का चिल्ला है, कहीं हज़रत महबूब इलाही का चिल्ला है, कहीं हज़रत मखदूम सिमना का चिल्ला है। तो इनके सजदों के निशान, इनके इबादतों के निशान भी ज़मीन पर बाकी होते हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे दीन में बड़ा एक एतदाल का मिजाज है, यानी दुनिया को छोड़ देना और पहाड़ों में चले जाना, ये तसव्वुर हमारे दीन में नहीं है। बल्कि हमारे दीन में जो एतदाल है वो ये है कि आपको दुनिया में रहना भी है, लेकिन दुनिया को अपने दिल में नहीं रखना है। यानी न तू ज़मीन के लिए है, ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो बेशक बंदा ज़मीन में रहे, दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया दिल में ना रहे। तो जब दुनिया दिल से निकल जाती है तो बंदा खुदा का हो जाता है, और जब दिल में दुनिया बस जाती है तो बंदा शैतान का हो जाता है। इसलिए हमारे सूफिया ने ये सिखाया कि हमें दुनिया में रहना है, हर रिश्ते को जिम्मेदारी से अदा करना है, हर जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देना है। उसके बावजूद दुनिया में रह करके हमें अपने रब से ताल्लुकात मजबूत करने हैं। और सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो इसकी बड़ी शानदार मिसाल है कि सुल्तान जी ने पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में अपने खुलाफा को भेजा है। आखिर कौन सा शहर है कि जहां निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलाफा को ना भेजा हो दीन की रहनुमाई के लिए, इस्लाम की रोशनी को कुफ्र के अंधेरों में पहुंचाने के लिए। आखिर वो कौन सा दिल है कि जिस पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा ने दस्तक न दे दी हो। हिंदुस्तान का हर वो शहर, जिस तरह से हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उस दुनिया में यानी 700 साल पहले जिस तरह से पूरी दुनिया में ये निज़ाम पहुंचाया है, आप देखिए कि एक बड़ी मिसाली शख्सियत है। आज जिस तरह से राजधानी दिल्ली से पूरा मुल्क चलाया जाता है, उसी तरह से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 700 साल पहले रूहानियत का निज़ाम इस राजधानी दिल्ली से चलाया था। और पूरे मुल्क में हर जगह अपने खुलाफा को, अपने मुरीदीन को, अपने मुतक़िदीन को, अपने मुतवस्सिलीन को हर जगह भेज दिया था बंदगान खुदा की रहनुमाई के लिए। हालांकि टॉर्चर करते थे उस ज़माने के बादशाह, हज़रत महबूब इलाही से हसद भी करते थे, लेकिन रूहानियत की बादशाह ने दिलों पर वो झंडे गाड़े हैं कि हुमायूं का मकबरा बराबर में है, लेकिन हुमायूं की कब्र पर लोग बैठ कर के सेल्फियाँ लेते हैं। बाबर का भी एक इतिहास रहा, लोधी का भी एक इतिहास रहा, खिलजी की भी एक तारीख रही। ये तमाम वो तुगलक हुक्मरान हो या लोधी हुक्मरान हो या खिलजी हुक्मरान हो, इनकी बड़ी बड़ी तारीख है। बड़े बड़े महल भी इसी दिल्ली में हैं, लेकिन आप देखो कि उन महलों में लोग पैरों से यानी पैरों से चप्पल भी नहीं उतारते। लोग जाते हैं, कोई अदब एहतराम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान जी का आस्थाना है, महबूब इलाही का ये चिल्ला है कि यहाँ लोग इज्जत से, एहतराम से, अदब से आते हैं, वजू करके हाजिर होते हैं, बरकतें हासिल करने के लिए हाजिर होते हैं। तो सूफिया किराम की बारगाह में इबादतें इस तरह से करने का तसव्वुर सिखाया जाता है कि किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लो कि तुम्हारा दिल दुनिया से बिल्कुल खाली हो जाए, बस तुम देखो और तुम्हारा रब देखे, और तुम्हारी इबादतें रसूल पाक की उस हदीस की तफसीर बन जाएं कि जब तुम नमाजें पढ़ो तो ये महसूस करो कि तुम खुदा को देख रहे हो और खुदा तुम्हें देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर ना हो सके तो कम से कम इतना तसव्वुर ज़रूर करो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तो ये औलिया अल्लाह वो नमाजें पढ़ते हैं कि ये रब को देख रहे होते हैं, रब इनको देख रहा होता है। बहुत सारे औलिया अल्लाह की तो ये तारीख मिलती है कि वो नमाज में जब कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या नबी आप पर सलाम हो, तो जवाब भी आता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब दिल की दुनिया को बदल देता है, मुजाहिदात और इबादात के ज़रिए अल्लाह का फजल जब बंदे को हासिल हो जाता है, और बंदा जब इस तरह की जगहों को अपनी इबादतों के लिए, रियाजतों के लिए मुंतखब कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में सजदों के लिए जब मुंतखब कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल की दुनिया को बदल देता है। दिल की आँख खुल जाती है, फिर सारे पर्दे उठ जाते हैं, ज़ाहिर और बातिन यकसा नज़र आने लगता है। तो यही हमारे बुजुर्गों की, यही हमारे सूफिया की रविश रही। आइए हम लौटें, जिस तरह से हम रिवायतों पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, जिस तरह से हम रसूमात को अपनाए हुए हैं, हम ये भी देखें कि निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपनी ज़िंदगी में फ़राइज़ के अलावा जो नवाफिल अदा किए हैं, फ़राइज़ के अलावा जो सुन्नतें अदा की हैं,
फ़राइज़ के अलावा जो वाजिबात और नवाफिल अदा किए हैं वो कितनी बड़ी तादाद में हैं। आप देखिए कि सुल्तान जी अपनी पूरी ज़िंदगी रब की रज़ा के लिए गुजारते हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जिस लम्हे में रब की खुशनुदी हासिल न की हो सुल्तान जी ने। तो हम जहाँ रसूमात अदा करते हैं, महफिल सिमा में झूमते हैं, महबूब इलाही का नाम लेकर के खुश होते हैं, सुन कर के खुश होते हैं, तो हमें सुल्तान जी के इस तरीक़े पर और सुल्तान जी की इबादतों के इस पहलू पर भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं वो हम पर लगाए जाते हैं दरगाहों के हवाले से, दरगाहों के मानने वालों के हवाले से, और उसकी वजह यह है कि जो दरगाहों के मानने वाले हैं उनके अंदर इबादतों में सुस्ती पाई जाती है, नमाज़ों में सुस्ती पाई जाती है। इसकी वजह से लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को टारगेट करते हैं। माज़अल्लाह वो हज़रत गरीब नवाज की बारगाह में गुस्ताखियाँ करते हैं, वो हज़रत ख्वाजा कुतुब की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो अगर वो ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं तो उन बेवकूफ़ियों का हम जवाब जो है वो अपने अमल से दें, गालियों से न दे करके हम रब की बारगाह में सजदे करके इस छवि को सही करने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम इस रास्ते के मुसाफिर हो जाएंगे तो हकीकी फैज़ और सही फैज़ महबूब इलाही का वो हमें हासिल होगा। क्योंकि ये सूफिया इसीलिए तो आए हैं कि बंदों का रिश्ता खुदा से जोड़ दें और बंदों के आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएं। इसी के लिए इन्होंने अनथक मेहनतें की और यही पैगाम है इन बुजुर्गों का। खुदा करे कि हम भी किसी ऐसे मकाम को अपना जो है इबादतों का एक ख़ास इबादतों के लिए ख़ास कर लें किसी मकाम को, और अगर कोई मकाम ऐसा इबादत के लिए ख़ास ना हो तो कम से कम हम फ़राइज़ भी अदा कर लें तो भी ये बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए, इन तमाम जो गलतियाँ हमसे होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश भी फरमाए और हमें आगे तौफ़ीक दे कि हम सूफिया किराम की, सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही की खुसूसी तालीमात पर और जो असल तालीमात हैं हम उनके पैरोकार बन जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।